Hmm. Hmm. So today we will be starting with the chapter number 7, that is current electricity. Okay. Usually what happens is students find this chapter very difficult, especially some of the numericals. So I have given all the topics to you guys. That is, first is electric charge, electric current, electric potential, Ohm's law, resistance, resistivity, then EMF. All this topic basically we are going to cover in these chapters. Okay? So we have some topics like this specific resistance, EMF, heating. The numericals are very tricky. So the main thing is basically I will give you some shortcuts that are not present in textbook itself, that will make your numericals easy for you. Okay, I have given sequence wise so that it will become easy for you to understand each and every concepts. In textbook some topics will be here and there, okay, but we'll follow this. Okay. So we will start with our first topic, guys, that is electric charge, that is Q. So whenever I'm talking about electric charge, okay, you should know one thing about electric charge. Okay, in I guess in 9th standard or in earlier standards you have studied. Okay, there are two types of charges. If I'm talking about charge, okay, there are two types of charges. One is positive charge and second is negative charge. What is this positive charge and what is this negative charge? Simple. If you bring a charged body near an uncharged body, you will see कि electrons will start moving up from one body to another body, right? So if electrons is moving to one body, it will transfer in this body. So when electrons is transferred in this body will become negative and this body will become positive. That's why we say that is one body is positive and another body is negative. Okay, so you guys know what is positive, that is similar charges, they will repel, that is called as like charges. Positive, negative, they will repel, guys. When I'm talking about unlike charges, what do you mean by unlike charges? Unlike means one is positive, second is negative, or negative positive. They will attract, guys. And we say opposite attracts वैसा, तो opposite charges also will attract. So this we studied in earlier lower standards. The main thing that we have to understand, what is electric charge, guys. Okay, first I will give you the formula and then I will explain what is electric charge. So electric charge का formula you will see is plus minus Ne. ठीक है, तो Q equal to plus minus Ne. What is this Q? Q is called as electric charge. The symbol of charge is Q, capital Q. Sometimes you will see there is small q. N we call it as number of electrons. E is called as charge of electrons, and which is fixed, guys. We have studied this in earlier standards. Charge of electron, that is E is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. What is plus? Plus is called as deficit. Minus is called as excess. What are these, guys? What is deficit and what is usually excess? Simple. I will take a body. A body is having a charge. Okay, if a body is having a charge, this body has positive charge, this body has negative charge. Okay. Yes. So Q, again, guys, listen carefully. Okay. Q, I'm talking about a charge, deficit and excess. Okay, there is one body. This body is losing electrons.
लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब दिस बॉडी इज लूजिंग नेगेटिव चार्ज, तो दिस विल बिकम पॉजिटिव, है ना. अब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होके ये बॉडी में आ रहा है. नाउ जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव होके इसमें आया, दिस विल बिकम मोर नेगेटिव. तो मोर नेगेटिव मतलब उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया. अब इसमें एक्सेस आ गया, इसमें से निकल के आया, सो दिस विल बिकम डेफिसिट. सो डेफिसिट मतलब पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ गया, दैट इज माइनस. ठीक है. सो Q को also we call it as the quantity of charge. And how can we determine the quantity of charge? We can determine the quantity of charge, कितना चार्ज है, by deficit of electrons or by the excess of electrons. ठीक है. तो इसलिए ये फॉर्मूला आता है, दैट इज Q is प्लस माइनस एन ई, एंड इसका ऐसा यूनिट आता है, द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, कैपिटल C. Sometimes they will also give you millicoulomb. मिली मतलब 10⁻³ और माइक्रोकूलम, माइक्रो इज 10⁻⁻6 और नैनोकूलम is 10⁻⁹ coulomb. They will give you this, guys. Okay, so this is electric charge. So one type of question, guys, they usually ask in board exams or in preliminary school exams. Okay, example like this. So they will tell you कि 1 coulomb of charge is flowing in a wire. One coulomb of charge is flowing in a wire. Find n. हमको ढूंढना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो 1 coulomb चार्ज फ्लो हो रहा है वायर में, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्लोइंग इन दैट वायर, यू हैव टू फाइंड. सिंपल. हाउ टू सॉल्व? सिंपल सॉल्यूशन. आई नो Q इज 1 coulomb. मुझे E का वैल्यू भी पता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻9 coulomb. ढूंढना क्या है? N. How can you find this N? सिंपल है. N कैसे ढूंढोगे गाइस? सिंपल वे टू सॉल्व N. सो देयरफॉर आई नो दैट Q इज इक्वल टू N E, प्लस माइनस जाने दो. ठीक है ना, डेफिसिट और एक्सेस से डायरेक्ट फॉर्मूला. तो Q इक्वल टू NE. Q का वैल्यू दिया है 1, ढूंढना है N. E इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19. तो N ढूंढना है गाइस, सिंपल. तो N विल बी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, जिसको सॉल्व करके मुझे आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर सॉल्विंग दिस गाइस. सो 1 coulomb, 1 coulomb ऑफ चार्ज में आई विल सी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, 6.25 इंटू 10⁻18. इतने इलेक्ट्रॉन, सो मच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गाइस. एग्जाम में दे विल आस्क यू 5 coulomb. 5 coulomb सिंपल, 5 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18. 3 coulomb सिंपल, 3 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18. ऐसा करके विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. हाँ, सिंपल याद रखना. तो 1 coulomb में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 coulomb 3 coulomb मल्टीप्लाई करना. सो मच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन दैट वायर. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न इन दिस टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है. सो कॉपी दिस एंड राइट. So now we'll move on to second topic, guys. That is electric current. ठीक है. करंट वर्ड सुना रहेगा तुम लोग ने. ठीक है ना. यूजुअली करंट, वी से करंट फ्लो हो रहा है. व्हाट डू मीन बाय करंट फ्लो हो रहा है? करंट नहीं फ्लो होता है गाइस. करंट नहीं फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है चार्ज. चार्ज में भी कौन सा? इट इज इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स में भी कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री, वेला, जो फ्री है, जो जा सकते हैं. एंड इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, दैट इज बेसिकली वी से एज करंट विल बी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट मतलब टाइम होता है, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. आई इज इक्वल टू QT, है ना. QT समझा तुमको क्या होता है?
तो अभी इजीली याद रहेगा तुमको, I इज इक्वल टू क्यू टी, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट. क्या होता है इलेक्ट्रिक? सिंपल होता है गाइस. देखो, सम इमेजिन दिस इज अ मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है ना, बीच में प्रोटॉन्स है, दिस आर प्रोटॉन्स 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 प्रोटॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में, कोई इधर जा रहा है, 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 सम वन सम इधर गोइंग, ठीक है, एवरी इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग इन रैंडम मोशन, ठीक है. अब क्या होता है गाइस, लिसन केयरफुली, सेम हियर भी, इधर आल्सो देयर इज प्रोटॉन्स, टेक प्रोटॉन्स, दिस आर इलेक्ट्रॉन्स. अब नाउ दिस मेटालिक कंडक्टर आई कनेक्ट टू सेल, आई कनेक्ट दिस मेटालिक कंडक्टर टू अ सेल. अब जब सेल कनेक्ट होते हैं ना गाइस, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है. whenever there is a potential difference cell connect करने पे, you will see electrons will start moving, electrons will start moving towards positive terminal, towards positive terminal. क्यों? क्योंकि if I say कि if charge is moving, ठीक है, current flow है, this is A, this is B, the current is flowing over here, तो electron or charges will move in opposite direction, है ना. Current will always move from higher potential, we'll say that is positive, to lower potential, that is negative. Positive is called as higher potential. Potential क्या होता है पढ़ेंगे गाइस. नेगेटिव को बोलते हैं लोअर पोटेंशियल. तो we know current will flow from higher to lower, and electrons का डायरेक्शन गाइस ऑपोजिट होता है. These are electrons from negative to positive, ठीक है. So electrons will flow from negative to positive. So this electrons that is flowing per unit time is called as current. तो I is equal to again QT, Q को भी कॉल एज NE upon T, है ना, ये फॉर्मूला आता है न्यूमेरिकल्स में. You'll also use this formula in numericals also, ठीक है. More time less current. सबसे बेस्ट मटेरियल का इस करंट अगर फ्लो हो रहा है ना, दैट वी यूज इन आवर होम इज सिल्वर, सॉरी कॉपर. बेस्ट इज सिल्वर, हम यूज करते हैं कॉपर, है ना. सिल्वर सबसे बेस्ट होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट सिल्वर, इट इज बेस्ट मटेरियल. बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रेजिस्टेंस भी इसका कम होता है, बट वी कैन नॉट अफोर्ड सिल्वर, है ना. क्यों सिल्वर लेगा तो पूरे घर गाँव बेचना पड़ेगा, because if you use this silver wire, we use copper. Copper cheap भी होता है and is used. So है ना, what is SI unit of current again? SI unit is ampere, capital A, ठीक है. Again simple, I is Q upon T. So now tell me, current का unit है ampere, charge का unit है coulomb, time का unit है second. तो 1 ampere is 1 coulomb upon 1 second. एग्जाम में they will ask you question, define 1 ampere. तो सिंपल है, what is 1 ampere guys? What is 1 ampere? तो 1 ampere is 1 coulomb of charge flowing for 1 second in a conductor. That is 1 ampere. ठीक है, तो ये चीज याद रखनी. Also you will see amperes रहेगा, the value will be in micro, milli ampere, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर. मिली मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो इज 10⁻⁻6, नैनो इज 10⁻⁹ एम्पियर. ठीक है, अंडरस्टूड. वन मोर थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस रिगार्डिंग करंट, दैट करंट को इज यूजुअली स्केलर क्वांटिटी. करंट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है. दो क्वांटिटी होता है, स्केलर या वेक्टर. इलेक्ट्रिक करंट इज टर्म्ड एज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है. सो इफ अगर एक सर्किट में अब क्वेश्चन आते हैं गाइस, वी नो करंट, करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, दैट इज करंट, है ना. इंसुलेटर, वी आर टॉकिंग अबाउट इंसुलेटर. इंसुलेटर में करंट फ्लो ही नहीं होता है, दे हैव इलेक्ट्रॉन्स इन दैट, ठीक है, बट वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, मूव नहीं होते, ठीक है ना. मेटल्स में क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स दे मूव, है ना. जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे मूव, दैट्स व्हाई यू विल सी करंट इज फ्लोइंग, ठीक है. दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, कितने टाइम में,
तो अलग अलग मेटल्स होते हैं, अच्छे मेटल्स में कम टाइम में चार्जेस ज़्यादा जाते हैं, है ना. कोई मेटल्स दैट इंस्टेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम भी यूज़ कर सकते हैं, बट कॉपर का कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं कम टाइम में कंपेयर टू दिस. ठीक है. सो इफ आई वांट टू मेजर करंट, कैसे करेंगे? सिंपल. करंट करने का, मेजर करने का डिवाइस है दैट इज कॉल्ड एज एमीटर गाइस. एमीटर. ठीक है. एमीटर क्या होता है? यूजुअली यू माइट हैव सीन कि ऐसा सर्किट है, ये सेल है, ठीक है, तो ये रेजिस्टर है या बल्ब कोई कुछ भी है, ठीक है. तो यू विल कनेक्ट अ डिवाइस कॉल्ड एज ए, दिस इज सिंबल फॉर एमीटर. ऐसा. और ये डिवाइस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टर. बल्ब हो या रेजिस्टर हो, उसका सीरीज में कनेक्ट होता है. दिस इज पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होगा. नेगेटिव, करंट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सीरीज में कनेक्ट होता है. एंड दिस एमीटर का रेजिस्टेंस शुड बी 0. एंड वाई सीरीज? सिंपल. जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है, सीरीज में करंट कभी भी सेम ही होता है. दैट्स वाई जो रेजिस्टर में यूजुअली करंट होगा, जिसमें हमको चेक करना है कितना करंट फ्लो हो रहा है, विल गेटिंग इन एमीटर. ठीक है. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. रेजिस्टेंस व्हाट इज आर, यार हम पढ़ेंगे, बट रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, इतना समझ लो. क्यों? आगे पढ़ेंगे हम. ठीक है. सिंपल क्वेश्चन आता है गाइस इसका. यू हैव वेरी सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन फॉर दिस टाइप ऑफ फॉर्मूलाज, दैट इज करंट का फॉर्मूला. सिंपल दे विल गिव. ठीक है. एग्जांपल. ठीक है. ठीक है. सिंपल है. 5 कूलम ऑफ चार्ज is flowing in a wire for 20 seconds. Find current I. हाँ, सिंपल सॉल्यूशन गाइस. क्या है? चार्ज दिया है 5 कूलम, टाइम दिया है कितना सेकेंड? 20 सेकेंड. क्या ढूंढना है? वी हैव टू फाइंड करंट, क्वेश्चन मार्क. सिंपल. I इज इक्वल टू Q बाई टी, है ना. Q क्या है? 5, टाइम 20, 5 1 जा 5 4 जा 1/4. तो आंसर आता है 0.25 एम्पियर. दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इजी. मतलब यू विल टेक डायरेक्ट क्वेश्चंस फॉर दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला. ये फॉर्मूला के लिए विल गेट डायरेक्ट क्वेश्चंस. सिंपल, इजी, पक्का, है ना. डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए. ठीक है. और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क. एग्जांपल. ठीक है. डू वन थिंग फर्स्ट, राइट ऑल दिस. ठीक है. व्हाट यू गाइस कैन डू ना, सब डेफिनेशंस एंड ऑल जो भी रहता है ना, यू कैन लर्न फ्रॉम टेक्स्ट बुक गाइस. व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक अ कॉन्सेप्ट्स इजी. थोड़ा इजी बनाऊंगा, थोड़ा अंडरस्टैंडेबल बनाऊंगा. ठीक है. फुल मतलब इफ यू whenever I will teach you everything ना, उसके बाद एक बार टेक्स्ट बुक रीडिंग करना है, सो दैट चैप्टर विल बिकम इजी फॉर यू, है ना. मतलब फॉर एग्जाम्पल इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज रेट ऑफ वर्क डन. रेट ऑफ वर्क डन बोलो. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट ऑफ वर्क डन पावर का होता है गाइस. सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना. तो इंस्टेड ऑफ दैट यू विल see when reading textbook you will get these definitions. ठीक है ना. 1 ampere का भी definition I have explained. 1 coulomb of charge flowing for 1 second you will get directly in textbook. Read textbook after learning this. ठीक है ना. So write this, take screenshot. ठीक है. So they will ask you again one more type of question they are going to ask you guys. Simple है. ठीक है. ठीक है. A copper wire or you can say 10⁻20 electrons are flowing in a copper wire for
ठीक है, फॉर 10 seconds. 10 raised to 20 electrons, guys, are flowing in a copper wire in 10 seconds. Find the current flowing in a wire. I equal to question. Simple. So solution easy. So 10 raised to 20 electrons मतलब I know what is n. n is 10 raised to 20 electrons. है ना, सबसे पहले जो दिया है क्वेश्चन में गाइस वो लिख दो गिवन में. फ्लोइंग इन अ कॉपर वायर फॉर 10 सेकेंड. टाइम ले लो, टाइम कितना है 10 सेकेंड. सिंपल. करंट निकालना है, आई विल बी क्वेश्चन मार्क. करंट का फॉर्मूला आई नो, करंट इज क्यू टी. ठीक है, Q इज एन ई अपॉन टी. आई नो ई का वैल्यू भी मुझे पता है गाइस. ई क्या होता है 1.6 to 10 raised to minus 19. So let us put n कितना है 10 raised to 20. E कितना है 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम अपॉन टाइम. टाइम कितना दिया, टाइम दिया 10 seconds. Solve this, you will get the answer directly, है ना. So this will become 20 minus 19 will become 10. So 1.6 into 10 upon 10. 10 cancel, so you will get answer as 1.6 ampere. This will be the current flowing. So like this. So they can ask you like this. This is one type of question they can ask you. Second type. Now, also one more type I will tell you the question they will ask you. So usually guys, the numericals for current and charges are quite easy. Okay, you can see direct questions you will get. Example, 3 ampere of current is flowing in a conductor for 2 minutes. Find the number of charges. Find n usually. N is the number of charges. Yeah, n is the number of charges flowing in a wire. है ना? In a wire. Question. So 3 ampere of current is flowing in a conductor. Simple है guys. सबसे पहला ऐसा है said. Given लिख दो. I know 3 ampere. ये नंबर देखो, ये नंबर 2 numbers दिया है. ठीक है, I will use this. I is equal to 3 ampere. ओके सर, टाइम कितना दिया है, टाइम 2 minutes. टाइम 2 minutes का मतलब होता है 2 into 60 सेकेंड, दैट इज 120 seconds, है ना. ऐसा यूनिट में करना है. नेक्स्ट फाइंड द नंबर n ढूंढना है गाइस. सिंपल, आई विल राइट द फॉर्मूला दैट आई नो. आई दिया है तो आई का फॉर्मूला q अपॉन टी, बट q इज n e अपॉन टी. सो देयरफॉर आई विल बी n e अपॉन टी. आई नीड टू फाइंड n. तो n निकलना है तो t विल कम अप, तो I into t, E will go down. सिंपल. तो therefore n will be, I कितना दिया है 3, t कितना दिया है 120 अपॉन 1.6 into 10 raised to minus 19, है ना. So इसका वैल्यू you know 1 upon 1. I have told you 1 upon 1.6 into 10 raised to minus 19 is 6.25 into 10 raised to 18, है ना. You might have seen over here. चेक करो, 1 कूलम, 1 कूलम कितना फ्लो हो रहा है 1 कूलम में. यू विल सी दैट इज 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है. सो इफ यू विल सी ओवर हियर है ना, हियर 1 upon 1.6 into 10 raised to minus 19 को अगर मैं डिवाइड किया तो आई विल गेट दिस आंसर. सेम लाइक प्रीवियस. सॉल्व करो, विल गेट द आंसर. ठीक है ना. सॉल्व दिस, चेक क्या आंसर आता है. हाँ, डन. सो नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक गाइस, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इजी टॉपिक है. ठीक है,
पोटेंशियल क्या होता है तुमको आज थोड़ा इजी वे में समझाऊंगा. पहले फॉर्मूला लेता है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन बाय चार्ज. इट इज वर्क डन बाय चार्ज इन मूविंग फ्रॉम infinity to a point. What does that mean, guys? Simple तुमको समझाता हूँ, ध्यान से समझो. See, there are two charges. Let us take two charges. एक positive charge, एक positive charge. ठीक है. अब this positive charge is moving. ठीक है. अब ये charge ये भी positive है. अब ये charge will have a field nearby it, है ना, जिसमें वो किसी भी charge को attract कर सकता है या repel कर सकता है. Right? तो if I am talking about this positive charge, इसका खुद का field है और एक पॉजिटिव चार्ज अब इसके पास में आ रहा है. ठीक है. नाउ क्या होगा? दिस चार्ज विल रिपेल दिस, है ना. पॉजिटिव लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो ये रिपेल करेगा. अब उसको इधर रहना है, तो व्हेन चार्ज इज मूविंग ना, तो वो चार्ज वर्क करता है टू स्टे ओवर हियर. वर्क डन बाय चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल, है ना. एग्जांपल देता हूँ, अगेन देता हूँ, ध्यान से सुनो, वापिस समझेगा. समझो दिस इज वन चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है रेस्ट पे लाइन हो गई. ये चार्ज इंफिनिटी मतलब दूर है. इट इज फार अवे, आई डोंट नो द डिस्टेंस. इंफिनिटी. ठीक है. ये मूविंग चार्ज है, ये रेस्ट है. ठीक है. वी कॉल दिस एज टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज को हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं. ठीक है. विल टेक पॉजिटिव. नाउ दिस चार्ज इज मूविंग एंड कमिंग ओवर हियर. ठीक है. ऐसा इधर से इधर वो ट्रैवल कर रहा है. ऐसा है, ये ट्रैवल किया इधर तक, डिस्टेंस है उसका r ले लो. ठीक है. डिस्टेंस r मत लो, एक्चुअल इसका डिस्टेंस होता है r. ठीक है. ट्रैवल किया इसने, कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया इधर से इधर, एंड दिस चार्ज हैज कम टू पॉइंट a. अब लिसन, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट. अब ये पॉजिटिव चार्ज जब इधर आ रहा है, दिस पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल दिस चार्ज, है ना. रिपेल करेगा क्योंकि लाइक चार्जेस है. तो ये चार्ज के पास व्हेन द चार्ज इज मूविंग, द चार्ज इज डूइंग वर्क. तो वर्क डन बाय ये क्यू मतलब ये होता है टेस्ट चार्ज दैट इज मूविंग. तो वर्क डन बाय दिस चार्ज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टर्म कॉल्ड एज पोटेंशियल. उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गाइस. ठीक है. सो सिंपल डेफिनेशन है, वर्क डन बाय चार्ज इन मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट. एक पॉइंट पे अगर देखना है इज कॉल्ड एज. तो चार्ज ऐसा ट्रैवल करे, ऐसा पूरा गांव घूम के आए. ठीक है. वन, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड. तीनों में यू विल सी वर्क डन विल बी सेम. वर्क डन बाय 1 विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय 2. वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ. ठीक है. यही पॉइंट पे आ रहा है ना सेम, तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं है, तो वर्क डन सबका सेम रहेगा. ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल. तो दिस इज गाइस अगेन V इज वर्क डन बाय चार्ज. ठीक है. तो वर्क डन बाय कौन सा चार्ज है? यूजुअली ये टेस्ट चार्ज है. ठीक है ना, याद रखना है टेस्ट चार्ज है. तो टेक्स्ट बुक में Q दिया है, तो आई एम टेकिंग Q. कंसिडर दिस एज Q. ये Q नहीं है. ठीक है ना. Q1 ले लो एग्जाम्पल. सो Q ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट क्या आता है गाइस? अगेन ऐसा यूनिट इज वोल्ट. ठीक है. कैपिटल V, है ना. और दूसरा यूनिट अगेन से वर्क का जूल, चार्ज का कूलम, जूल अपॉन कूलम या जूल पर कूलम. सो आई विल राइट गाइस, पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट, वर्क का है जूल, चार्ज का है कूलम. सो 1 वोल्ट विल बी 1 जूल अपॉन 1 कूलम. सो एग्जाम में दे विल आस्क यू डिफाइन 1 वोल्ट. व्हाट इज 1 वोल्ट? 1 जूल ऑफ वर्क डन, है ना. 1 जूल ऑफ वर्क डन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज in moving from infinity to a point is called as 1 volt, guys. इसका definition you'll get in textbook, है ना. You'll get in textbook. Again 1 volt क्या है? 1 joule of work done by 1 coulomb of charge in moving from infinity to a point is called as electric potential. Usually electric potential को हम लोग electric potential also consider as scalar quantity. ठीक है. एंड एग्जाम्पल एक देता हूँ, जैसे कि दे विल गिव यू पोटेंशियल इज 5 वोल्ट. मतलब क्या है? ऐसे दिस इज क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. वोल्टेज भी बोलते हैं इसको, है ना. वोल्टेज भी बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं, मैनी नेम्स. इसको बोलते हैं वोल्ट,
SI unit. So don't get confused if you see this ऐसा V equal to 5 volt, है ना. न्यूमेरिकल्स भी गाइस इस पे आ जाता है, ठीक है. सो यू हैव टू चेक दैट V is equal to 5 volt. Also you will see कि some type of questions are asked. So guys, so as we know, V is W by Q, that is potential is work done by charge. Again it is scalar quantity and potential is 5 volt, है ना. इसको 5 volt बोलते हैं, ठीक है. होप तुमको समझा रहेगा. आई एम मेकिंग इट इजी फॉर यू. सिंपल. और एक चीज देखो गाइस, ठीक है ना. अगेन दे विल अंडरस्टैंड वन थिंग. इफ द चार्ज इज एट पॉइंट A, नाउ चार्ज कम्स एट पॉइंट B, है ना. पहले A पे आया फिर B पे आया. अब ऑब्वियस है गाइस, मुझे बताओ B पे ज्यादा पोटेंशियल चाहिए वो चार्ज को या A पे, राइट. ऑब्वियसली इट शुड बी एट B बिकॉज B ज्यादा क्लोजर है. B ज्यादा क्लोजर है तो दिस चार्ज विल रिपेल ज्यादा फोर्स से इसमें, राइट, टू B. तो इन दोनों के बीच में हमको दे विल आस्क यू कि B में ज्यादा है कि A में ज्यादा है. अब दोनों को कंपेयर करना है. वी विल फाइंड, नॉट कंपेयर, बेसिकली ये दोनों के बीच में वी कैन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस. दैट इज फॉर्मूला सेम है, W by Q. टेक्स्ट बुक में यू विल सी वन टॉपिक कॉल्ड एज PD. PD का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. सो सेम होता है गाइस, VB माइनस VA, दैट इज दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल. यूजुअली देखो क्या होता है, इफ आई वांट टू फाइंड करंट, ठीक है ना, करंट निकालना है, तो करंट निकालना है तो दे विल टेल यू टू फाइंड दो पॉइंट के बीच में A एंड B, ठीक है. तो बेसिकली दो पॉइंट यूजुअली दिया जाता है कि करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है, तो दो पॉइंट, तो उसमें वी ऑलवेज टेक दिस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. एक में ज्यादा है एक में कम है, तो वी विल टेक दिस पोटेंशियल डिफरेंस. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स. दो पॉइंट बोला तो इसका भी डेफिनेशन सेम है. अगेन व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वर्क डन बाय चार्ज इन मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट. पोटेंशियल डिफरेंस भी वर्क डन बाय चार्ज इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वन पॉइंट टू अनदर. सिर्फ उतना ही डिफरेंस है, बाकी सेम है. SI यूनिट भी सेम है, वोल्ट, स्केलर क्वांटिटी, बाकी सब सेम आता है. सिर्फ दो के बीच में हम लोग माइनस करते हैं. माइनस करके विल गेट ओनली वन वैल्यू, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. बेसिकली वी विल गेट वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है. सो दिस इज पोटेंशियल एंड दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस. ऑफ बॉक्स किया, द फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. सो राइट दिस नोटिस. अगेन definitions and the concept you will get in textbook. You have to read that textbook nicely so you get all the concepts. Okay, write it guys. Okay, we will solve some numericals for these questions. So एग्जाम्पल, इजी क्वेश्चंस. अगेन ये जो फर्स्ट 3-4 टॉपिक्स है ना, उसके ना न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इजी, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं. एग्जाम्पल देखो, ठीक है. इफ एग्जाम्पल, टेन coulomb of charge is flowing in a wire, comma, again 20 joule of work is done by the charge moving from one point to another, one point to another. ठीक है. Find the potential या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने बोलेंगे वायर. ठीक है. सिंपल सॉल्यूशन गाइस, ठीक है. 10 कूलम 20 जूल. सिंपल. क्यू दिया है, क्यू इज 10 कूलम, है ना. चार्ज इज फ्लोइंग इन अ वायर, 20 जूल ऑफ वर्क इज डन, तो वर्क डन विल बी 20 जूल.
ठीक है. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो चार्ज का सेम पोटेंशियल निकालना है, कितना रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी वी क्वेश्चन मार्क, सिंपल फॉर्मूला V इज W अपॉन Q, है ना. तो वर्क डन कितना दिया गया इस 20 जूल, ठीक है. Q कितना दिया है 10 कूलम, कैंसिल कैंसिल, कितना आ गया 2 वोल्ट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 2 वोल्ट, सिंपल. इजी. तो यू विल गेट सिंपल क्वेश्चंस फॉर ऑल द 3 फॉर्मूलाज. कौन सा 3 फॉर्मूलाज, ठीक है. आई विल टेल यू सेम यही फॉर्मूला सब में यूज होता है, ठीक है ना. अब और एक क्वेश्चन आता है, एग्जांपल 2 पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया है, ठीक है. 10 वोल्ट 2 वोल्ट, ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज इज मूविंग, चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है. अगेन 5 जूल ऑफ वर्क हो रहा है, ठीक है. 5 जूल ऑफ वर्क इज डन, 5 जूल नहीं रहते, ठीक है, ज़्यादा रहता है, 50 जूल ऑफ वर्क इज डन, ठीक है. तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, यू हैव टू फाइंड. इजी. ये पॉइंट टेक, है ना. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, VA माइनस VB इज इक्वल टू W बाई Q, है ना. गिवन में व्हाट दे हैव गिवन वर्क डन 50 जूल, है ना. एक वोल्टेज एक ले लो, VA कितना लिया है 10 वोल्ट, VB ले लो, सपोज दिस इज A, दिस इज B, ठीक है. VB दिया है 2 वोल्ट, है ना. सो वर्क डन, ठीक है, इज 50 जूल. पॉइंट A में पोटेंशियल इज 10, पॉइंट B में पोटेंशियल इज 2. वो दूर जा रहा है, इट्स गोइंग दूर. अबे जैसे एग्जांपल दिया था मैंने, ठीक है. सो यू हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग, Q निकालना है. सिंपल, सेम फॉर्मूला VA माइनस VB, है ना. सिंपल ले लो, पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस 2, वर्क डन 50, Q निकालना है. तो 8 इज इक्वल टू 50 अपॉन Q विल बी 50 अपॉन 8, है ना. दैट इज 25 अपॉन 4 हो जाएगा, राइट. डिवाइड करो, गेट द आंसर गाइस. इजी. है ना. तो कितने का आंसर आता है 6.25 कूलम. दिस इज द चार्ज फ्लोइंग. सिंपल, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस, है ना. मतलब डिफिकल्ट है ही नहीं. 3 फॉर्मूला, दे हैव स्टडीड 3 फॉर्मूलाज. पहला क्या था, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE. सेकेंड I इज इक्वल टू Q अपॉन T, दैट इज NE अपॉन T, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज V इज इक्वल टू W बाय Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस VA या VB माइनस VA, कंसिडरिंग B इज ग्रेटर देन A, W बाई Q. उसमें भी यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन वैल्यू, दैट इज E का कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. बाकी सब तो गिवन होगा, है ना. है ना. इसका यूनिट अगेन, इसका यूनिट कूलम, इसका यूनिट एम्पियर, इसका यूनिट वोल्ट, वर्क का यूनिट जूल. इन केस अगर समझा नहीं न्यूमेरिकल में कैसा है तो देख लेना कि ये सिंबल्स दिए हैं क्या, ठीक है. सो दिस आर द 3 टॉपिक्स दैट वी हैव डन, ठीक है. इन नेक्स्ट टॉपिक है, इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ओम्स लॉ एंड टॉपिक रिगार्डिंग रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस इन अ बल्ब, ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज, पैरेलल एंड स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी. So I will suggest you to go through all the topics that I have taught you and read your textbook and solve text back के questions. First you have to do that. ठीक है? Copy this.